Hello, very good afternoon to all of you. Hello, everyone. Yes, sir. Yes. Am I well audible to all of you? Akanksha? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Manit? Am I well audible to you? Priyanka? Sir. Yes. No? Okay. Sarvesh? Am I audible to you? Yes, sir. Yes. चलो सबसे पहले तो तुम लोग अभी जरा कुछ देर के लिए अपने अपने कैमरा ऑन कर दो बच्चों, कुछ देर के लिए। चलो जल्दी फटाफट। आकाश, आकांक्षा, फटाफट अपने कैमरा ऑन कर दो जरा। अंशिका, तुम लास्ट लेक्चर में थी क्या? Yes, sir. थी ना? दर्शन, तू पण लास्ट लेक्चरला होता? Yes, sir. Okay. What about Sarvesh? Sarvesh has not put on the camera. Yes. Akash, I am well audible to you. Yes, sir. Yes. Joyson. Hello, Joyson. Yes. Joyson, can you please tell me what was the first attempt of arranging the elements? Who made the very first attempt to arrange the elements? Dobereiner triad. Come again? Dobereiner triad. A Dobereiner triad. Okay. Divisha? Yes, sir. Mendeleev's periodic table was based on which criteria? Mendeleev's periodic table. Huh? मिला मिला क्या दिविशा? मिला? नहीं सर. दर्शन? Yes, sir. Mendeleev's periodic table was based on which criteria? अरे इतना छोटा है वो दिख ही नहीं रहा है किसी को? Sir, मैं बोलूं? हाँ बोलो. It was based on the chemical and physical properties of the element. No, Rishika, no. It was based on the increasing order of atomic mass. Mendeleev arranged the elements according to their increasing atomic mass, whereas modern periodic table was arranged according to increasing atomic numbers. हम लोगों ने दो पीरियोडिक लॉ भी लिख लिए थे लास्ट लेक्चर में, देखो जरा अपने अपने नोट्स में. एक मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ लिख लिया था और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख लिया था. मिला क्या सबको? हाँ.
ओके. सर्वेश, तू लास्ट लेक्चरला होता ना? हो सर. बरं. सर्वेश, can you please tell me that horizontal lines in periodic table are known as what? Horizontal Lines in the table are known as what? periods. And vertical lines are called as? Vertical Vertical lines are called as? Rishika, Yes, sir. vertical lines in the modern table are called as groups. Groups groups. How many groups are there, Rishika? 7, No, 7 periods are there. 8, 8, Groups 8. are 18. 18. Oh, okay, 18. Okay. Joyson, Yes. Joyson, you tell me how many elements are there in first period? Yes. How many elements are there in a first period? ये हुआ है अपना. Anshika, can you please tell me? Sir. हाँ बोलो. Two. हाँ, Two two elements. elements are there. Hydrogen and helium. तुम Helium. लोग वही जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायग्राम बना लिया था, वही डायग्राम तुम सामने रखो सिर्फ. बाकी कुछ मत करो, अपने आप तुम्हें आ जाएगा पूरा. ओके. Pranit, are you there? Pranit has left the meeting, I think so. Okay. Divisha, Yes, sir. Divisha, you tell me how many blocks are there in the modern table? Blocks. How many blocks? 4. Which one? S block, D block, P block, and F block. Okay. So you tell me where is the position of D block? D. D for a dog. D. D. हाँ. So the yellow box. हाँ, yellow box, बरोबर. Box. No, where is its position? Don't tell me the color. Position किधर है? काफी इजी है. In between the S and P block. Isn't it? Extreme Yes. left में अगर देखोगे तो S block है. Extreme right में देखोगे तो P block P है. block. S और P के बीच में अपना D block आता है. Okay. दर्शन, Yes, sir. Darshan, D block elements are also called as which elements? Transition element. Transition elements, correct. F block elements are called as? F block. Lithium-ions and actinides. No. All together F block elements are called as inner transition elements. First series is lanthanide and second series is actinides. Huh? Okay, Rishika. Yes, sir. Rishika, you tell me which type of elements are found in P block? P block में Metalloids not only metalloids, there are metals uric as well acid. as non-metals. हाँ? Okay. ऋषिका मुझे ये बताओ, मेटलॉइड्स कहाँ पर मिलते हैं?
पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ zigzag लाइन्स है। करेक्ट, जहाँ पर Zigzag. जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है? लेफ्ट में मेटल्स। मेटल्स है। ओके, फाइन। आकाश, Yes, yes, sir. Akash, you tell me where is the position of zero group elements? तेरे सामने वो डायग्राम नहीं है आकाश? लास्ट लेक्चर में नहीं था तू? टेक्स्ट बुक में आवाज आई? आवाज नहीं आ रही है तेरी। लास्ट लेक्चर में नहीं था क्या? सर था, पर टेक्स्ट बुक नहीं था मेरे पास। नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था वो ड्रॉ नहीं किया था तूने? मतलब मैंने व्हाइट बोर्ड पे इतना अच्छा डायग्राम बनाया था, वो निकाला नहीं था तूने आकाश? आकाश, आई एम आस्किंग समथिंग टू यू। नो सर। क्यों नहीं निकाला? लेकिन तुम्हें टाइम दिया था ना वो ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ क्यों नहीं किया? टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, पेन नोटबुक कुछ भी नहीं था क्या? था सर। तो दिस इज नॉट डन आकाश। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ भी एक्सक्यूज देंगे। मैंने तुम्हें 10-15 मिनट दिए थे ड्रॉ करने के लिए, सभी ने ड्रॉ किया कि नहीं? यस सर किया। सर किया था। यस सर। तो आकाश, व्हाई नॉट यू? यू आर वेरी स्पेशल। अपने पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो व्हाइट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जा रहा है तो कॉपी करना अपना ड्यूटी है। अंशिका, यस सर। अंशिका, यू टेल मी, group 2 elements, I repeat, group 2 elements are also called as group 2, vertical line group 2. Joyson, group 2 elements are called as? Yes, Joyson, group 2 elements Earth are called metal. as? Earth metal. They are not earth metal, they are alkaline earth metals. Okay. Group 1 elements are alkali metals. Correct? Okay. Yes. Jyotika, Yes sir. Jyotika, if you are speaking something, you are not audible. यस सर, आवाज आ रही है अभी? हेलो, जरा लाउडली बोलो बेटा ज्योतिका। सर अभी आ रही है आवाज? थोड़ा लो ही है, लेकिन चलो ठीक है। ओके कोई। अच्छा, मुझे ये बोलो ज्योतिका, हैलोजन्स कौन से फैमिली में मिलते हैं? हैलोजन फैमिली मतलब कौन सी फैमिली होती है? सर पी ब्लॉक में। कम अगेन, कौन सी? पी ब्लॉक पे सर। नहीं, पी ब्लॉक में होते हैं, मैंने पूछा ग्रुप नंबर। हैलोजन्स कौन? 17। 17, करेक्ट। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स है। ये ना आई थिंक हम लोगों ने, मतलब मैंने जो व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें नहीं लिखा था शायद से, बराबर ना? यस सर। डायग्राम में हैलोजन फैमिली नहीं लिखा है। ओके, दिविशा,
Yes, sir. Divisha, can you please tell me why the zero group elements are called noble gases or inert gases? Mm, I repeat my question. Why the zero group elements are called noble gases or inert gases? क्या रीजन है? जो भी राइट रॉन्ग जो भी है वो बोल दो फटाफट, ज्यादा सोचो मत. सर नहीं आ रहा. अरे सर मैं बोलूं? ऋषिका तुम बता सकती हो? यस सर, क्योंकि उन लोग ना ही गेन करते इलेक्ट्रॉन्स ना ही देते हैं. अरे वाह, वेरी गुड ऋषिका, नाइस. मतलब ऑनलाइन रह के भी 100% अटेंडेंस है अपना, बोथ फिजिकली एंड मेंटली. वेरी गुड. ओके दर्शन, नेक्स्ट वन फॉर यू बेटा. Yes, sir. Darshan, you please tell me, group 1 elements are also called as Group 1, elements are also called as alkali metals. alkali metals. Okay. Then you tell me, D block elements ranges from which group to which group? D block element ranges from which group number to which group number? 21 to 112. नहीं ग्रुप नंबर दर्शन, ग्रुप नंबर 3 to 12. 3 to 12. करेक्ट. ये हम लोगों ने अपने डायग्राम में भी ड्रॉ करके लिया है. ग्रुप 3 to 12. करेक्ट. अच्छा, ओके. सो अच्छा नहीं, वन मोर थिंग, कुछ क्वेश्चंस और है. जॉयसन, Yes. जॉयसन यू टेल मी, न्यूलैंड्स ऑक्टेव का रूल क्या था? Every first and eighth element का property same रहेगा. दिस इज, यस करेक्ट, दिस इज अकॉर्डिंग टू. Newland octave. नहीं, न्यूलैंड ने दिया वो भी बराबर है. फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, वो भी करेक्ट है. लेकिन ये फर्स्ट और एट्थ उसे कहां से सूझा था, कहां से आइडिया लिया था उसने? Mendeleev. नो 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 नो, इट इज रिलेटेड विथ समथिंग डिफरंट. दिविशा, कुठून घेतली त्याने आयडिया? So the song. सॉन्ग दैट इंडियन Sir, म्यूजिक octave? में. सारे हाँ, जो- इंडियन म्यूजिक, सारेगामा यस, पा. म्यूजिकल ऑक्टेट, सा टू सा. हाँ, Right. ओके, ठीक है. ऋषिका, Yes sir. which was the very first theory put forth for the arranging of the- elements? Dobereiner's triad. नहीं, ट्रायड से भी पहला कौन सा थियरी था? कुछ विलियम का था, आप बोल रहे थे. अरे वाह ऋषिका, यू रियली हैव अ गुड मेमोरी. हाँ, विलियम प्राउड्स थियरी. हाँ, लेकिन उस थियरी में क्या था ऋषिका? प्राउड ने क्या बताया था? सर ये याद नहीं है. ये याद नहीं है. अच्छा, इसका आंसर दिविशा देगी. दिविशा, विलियम प्राउड थियरी क्या बताता है? Um,
that every matter is made up of hydrogen. याद आया? Yes. सल्फर 32 अगर मास है तो सल्फर का एक एटम इज इक्वल टू 32 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये थियरी था। उसके बाद में ट्रायड का रूल आया, ट्रायड के बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आया, न्यूलैंड्स के बाद मेंडेलिव का टेबल आया, और मेंडेलिव के बाद इन ईयर 1913 कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। करेक्ट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क भी दिया था, है ना? हाँ, आई थिंक वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखना था और ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलिव टेबल लिखने थे। सभी ने किया है वो होमवर्क? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। आकांक्षा किया वो? ज्योतिका, सर्वेश, प्रणीत? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने वो सबमिट भी किया है क्या विद्या मैम के मोबाइल पे? यस सर, ग्रुप पर भेजा था। Yes. Yes, ग्रुप में sir. भेजा था? Yes, sir. अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी आज हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं, जहाँ पे हमें कई सारे अलग अलग टॉपिक्स सीखने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये सब क्या क्या है विल स्टडी वन बाय वन। ओके, पहले तो मैं कैमरा ऑन करता हूँ बच्चों, तुम लोग जरा सिर्फ देखो तुम्हें क्लियर विजिबल है या नहीं। एक सेकेंड। सबसे पहला टॉपिक लिखो इन फॉर टुडेज लेक्चर। अब तुम लोग कैमरा जरा ऑफ कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Write in that it is distribution of electrons. It is distribution of electrons in the shells. It is distribution of electrons in the shells present inside the atom. Present inside the atom. इसके बाद हमें जो भी जरूरी मतलब नेसेसरी टर्म्स है उनका मीनिंग हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है शेल्स। बोलो बोलो क्या हुआ? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? हेलो, अभी भी नहीं आ रहा है? Sir, it's coming. Equal to- हाँ, ऋषिका सभी को आ रहा है आवाज। ये कोई तो जरा ऋषिका को मैसेज कन्वे करो मेरा कि सबको आवाज आ रहा है करके। शी इज मैसेजिंग मी दैट शी इज नॉट एबल टू हियर माई वॉइस। उसे चाहिए तो लीव करके फिर से रीजॉइन करने के लिए बोलो जरा कोई तो। ओके, बाकी सबको आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. अब देखो, अभी वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। एक्चुअल अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें
हमें टॉपिक सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए जो जरूरी बातें हैं उसमें से सबसे पहली टर्म है शेल्स या फिर ऑर्बिट्स। व्हाट आर शेल्स और व्हाट आर ऑर्बिट्स? दीज आर कॉन्सेंट्रिक, डोंट कॉपी एनीथिंग, बाद में सब कुछ एक साथ कॉपी करो। दीज आर कॉन्सेंट्रिक circular path in which electrons revolves continuously around the nucleus। ठीक है, अब देखो तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में एकदम बेसिक जो हुआ है, अब बेसिक ही हुआ है और तुम सबका 9th भी ऑनलाइन ही गया है, तो आई रियली डोंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर नाउ। लेकिन किसी भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है, तो ये है अपना एटम। तो उसमें देखो ये जो पार्ट है दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो सारे सर्कल्स है, ठीक है, ये सारे सर्कल्स क्या है? दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? ये सारे सर्कल का सेंटर एक ही है। तो दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, या फिर उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? शेल्स। तो इसके नाम दिए जाते हैं, ऑर्बिट्स के या शेल के नाम दिए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट इज के, एल, एम, अगर इसके आगे रहा तो एन, ओ, पी, ऐसे शेल्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी शेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना अपने, वो घूमते रहते हैं। तो कैसे देखो, लाइक ओवर हियर, लेकिन अब ये ना हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे इसका नंबर भी फिक्स होता है। देखो, तो शेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होता है? देखो, अगर के शेल हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल का मतलब 18, एन शेल का मतलब 32। और ये हमें नंबर कहां से मिला? ये नंबर हमें मिलता है बाय फॉर्मूला 2n²। देखो के ये अपना पहला शेल है, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू 1। एल ये अपना सेकेंड शेल है, तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अब इस फॉर्मूला में n की वैल्यू रखो, तो इसके लिए देखो क्या मिलेगा? 2 into 1² that is 2 into 1 that is 2, 2 into 2² that is 2 into 4 that is 8, 2 into 3² that is 2 into 9 comes 18। तो ये ऐसे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो नंबर मिलेगा। पहले ये शेल्स क्या है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये समझ में आया है सबको? एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अभी स्टेप बाय स्टेप पहले ये कॉपी कर लो तुम्हारे नोटबुक में, और अच्छे से कॉपी करना है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ये सब मालूम होना जरूरी है। वन मोर थिंग, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स मिलते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0। ऑर्बिट्स में क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जिन पे चार्ज होता है Sir, नेगेटिव। बोलो। your video is going off. एक सेकंड, एक सेकंड, इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, आई डोंट नो।
देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, न्यूक्लियस में ये दो पार्टिकल मिलते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें से प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है जीरो। ऑर्बिट्स में मतलब शेल्स में सिर्फ कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, जिन पे चार्ज होता है नेगेटिव। और एक स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है, इन न्यूट्रल एटम number of electrons is equal to number of proton। सब कुछ एकदम नीट मैनर में कॉपी करना है। सर डन। हाँ everyone finished? Yes, sir. Yes, sir. ऋषिका डन? यस सर, हो गया। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बोलो, ये जो भी डायग्राम हम लोगों ने लिखा है इसका बेसिक तो तुम्हें 9th में हो चुका है, करेक्ट? जब भी हम लोग किसी Yes, sir. एटम के बारे में सोचते हैं तो एटम में टोटल कितने पार्टिकल्स हमें मिलते हैं एटम के अंदर? हमें टोटल 3 अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं। प्रोटॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, करेक्ट? जिसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें कहां पर मिलते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे वो हमेशा कहां पर मिलेंगे? तो ऑर्बिट्स या फिर शेल्स में मिलेंगे, ठीक है? अभी हर के शेल में कोई भी एटम हो, हर एक के शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। एल शेल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18 और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन मिले। अब ये फंडामेंटल ध्यान में रखकर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऋषिका, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या लिख कर लिया है, पढ़ो जरा एक बार। जो वाइट बोर्ड पे लिखा है वो पढ़ो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्या स्टेटमेंट लिखा है? These are concentric circular paths in नो नो which नो, electrons. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या लिखा है हम लोगों ने? सर मैं आप ऑडिबल नहीं थे ना तब, मैं ओह, मेरे को कुछ अच्छा। सुनाई नहीं दे रहा था। Okay, Divisha, just read what we have noted about electronic configuration. Yes, sir. It is a distribution of electrons in the shells present inside the atom. Yes, it is distribution of electrons in the shells present inside the atom. Just a moment, we'll close that window. Just a moment. It's raining heavily. So let us continue. Sorry for the disturbance and gap. सर बोलो। हाँ, बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डेफिनेशन था, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स इनसाइड द एटम्स के बाद इनसाइड द के बाद क्या है? Inside the atom, it is distribution atom of है? electrons. Yes, it is distribution of electrons present in the shells inside the atom. अच्छा, Inside ठीक the है। atom. Okay, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मतलब अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हमें, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान में रखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे
वो तुम्हें, अगर तुम लोग साइंस स्ट्रीम लेते हो तो तुम्हें वो कम से कम 2-3 आने वाले 2-3 सालों तक याद ही रखना है। तो सपोज तुम्हें दिया है, सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। ये ना एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये तुम्हें दिया जाएगा बच्चों। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? सिंपली इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इसका मतलब हुआ। तो हाइड्रोजन का एक एटम हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, विल शो इट समथिंग लाइक दिस। मतलब क्या है? सेंटर में मैंने ये न्यूक्लियस बताया है, इज अवर न्यूक्लियस, और ये हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल मतलब के शेल है, ठीक है। अब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ये बोलो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो 2। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो आसानी से रह जाएगा, करेक्ट। ये वाला हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ओनली 1। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम पे जाता हूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो, उसका भी न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और एक शेल ड्रॉ करेंगे। ये पहला ही शेल है के शेल, करेक्ट। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। तो यहाँ पर एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन में दिखाऊंगा, तो यहाँ हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सपोज ये बताना है लिथियम, एटॉमिक नंबर तुम्हें दिया है 3। अब यहां से ना तुम्हारा ट्विस्ट चालू हो जाएगा। देखो ट्विस्ट क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस देखो, सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा, फर्स्ट शेल इज के शेल एंड सेकेंड इज एल शेल, करेक्ट। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इज एल शेल, बराबर। अब ये के शेल, एल शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल लिथियम में? 3। अब इन 3 में से पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वो के शेल में जाएंगे। देखो यहां पर एक और यहां पर एक। क्यों? क्योंकि के शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 2। 3 में से 2 पहले शेल में चले गए, बचा 1। अपने पास सेकेंड शेल कौन सा अवेलेबल है अभी? एल शेल है। तो एल में वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? देखो 3 इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में 1। तो 2,1 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लिथियम। एल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 8। हमें तो एक ही रखना है, वो आसानी से जा सकता है। सपोज मैंने लिखा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7। तो 7 का मतलब देखो क्या आएगा? 7 का मतलब न्यूक्लियस के बाजू में पहला शेल के और दूसरा शेल आएगा एल। तो ये के शेल में कितने जाएंगे और एल शेल में कितने जाएंगे? देखो 7 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो के शेल में जाएंगे, करेक्ट। 7 में से 2 गए, 5 बचे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। एल शेल की कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 8 की मैक्सिमम कैपेसिटी है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए आराम से रहेंगे। तो आई कैन ड्रॉ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? 2,5। ये आ जाएगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Have you got this thing? How to draw the configuration? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो पहले ये कॉपी करो
और उसके बाद मैं 4 एलिमेंट्स तुम्हें देता हूं एटॉमिक नंबर के साथ, तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। वो मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, तुम्हें उन सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जरूरत पड़ने पर तुम शेल बढ़ा भी सकते हो, मतलब के, एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ऐसे भी ले सकते हो। चलो स्टार्ट योर वर्क। चलो जल्दी, ऋषिका जम रहे हैं ना? जयसन, Yes, sir. दर्शन, Yes, sir. दिविशा, अंशिका, Yes, sir. चलो जल्दी, डन एवरीवन? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी तुम्हें नियॉन, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम, ये चारों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। मैं 1 बाय 1 सबका बता देता हूं। सबसे पहले तो नियॉन 10, इसके लिए के शेल और एल शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 10 में से 2 गए, 8 बचे, तो सेकेंड एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अपना 2,8, ये नियॉन के लिए बनेगा। उसके बाद है मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम 12 का मतलब के शेल, एल शेल और एम की भी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। क्यों? क्योंकि के शेल में 1, 2, 2 गए, एल शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 + 8 10 हो गए। 12 में से 10 गए, 2 बचे। ये जो तीसरा एम शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 बच्चों, 18, तो उसमें 2 आसानी से रहेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन अपना बनेगा 2,8,2। सिमिलरली सल्फर 16 है, 16 में से 2 यहाँ पे, 8 सेकेंड शेल में और बचे हुए 4 एम शेल में चले जाएंगे। मतलब सल्फर 16 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,6, करेक्ट। और पोटेशियम 19 के लिए 19 में से 2, 8, थर्ड शेल में भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। और यहां पर शायद से तुम्हारा गलत हो जाएगा, पोटेशियम में एक लास्ट फोर्थ शेल में जाएगा। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 2,8,8,1। इसमें से 4 में से चारों के चारों करेक्ट आए, ऐसा कौन है? इज देयर एनीवन जिसके चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट आए हैं? Yes, sir. So, yes, sir. यस जॉयसन, वेरी गुड। दिविशा, चारों के चारों करेक्ट। Yes. Sir, लेकिन last दिविशा यू टेल, हाँ बोलो बोलो बोलो। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं ना? हाँ करेक्ट, नाउ यू आर देयर ऋषिका, करेक्ट क्वेश्चन। मुझे वही पूछना है दिविशा,
पहले तुझे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. हेलो दिविशा, कैन यू हियर Yes, मी? sir. Yes, yes. हाँ, दिविशा तेरे चारों करेक्ट है. Yes. हाँ, वो नियॉन मैग्नीशियम सल्फर का तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो तुम कर ही लोगे सब लोग. यू टेल मी दिविशा, पोटेशियम के लिए 2,8,8,1 जो तेरा भी कॉन्फ़िगरेशन आया है, यू टेल मी हाउ डू यू कम टू नो कि थर्ड शेल में 8 के बाद फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्योंकि इफ यू रिमेंबर, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 होने चाहिए, तो तुमने भी 8 इलेक्ट्रॉन के बाद एक शेल नेक्स्ट में डाला. ये कैसे किया तुमने? अच्छा, जॉयसन का रिप्लाई आया, सर 9th में सिखाया था. दिविशा तेरा भी रिप्लाई यही है बेटा, 9th में सिखाया था. Nine. Sir, actually, when I हाँ, was solving it, I first got 2,8,9. But then I thought it was wrong, so that is why I did it again. So I got 2,8,1. अच्छा, ओके. सो इनिशियली यू मस्ट हैव गॉट 2,8,9. दैट वाज करेक्ट. Yes. 2,8,9 ये ही पहले मिलना चाहिए, क्योंकि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. लेकिन यूजुअली अब यहाँ पे तुम लोग क्या नोट करोगे? वैसा 9th में सिखाया था, वो अभी भी याद है. इट इज गुड, बट वी शुड नो द परफेक्ट लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. व्हाट इज द लॉजिक? दैट इन फर्स्ट शेल duplet should be complete, and from second shell onwards octet should be complete. okay? इसका मतलब क्या है? देखो, ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे ना बच्चों, पहले शेल में ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन का केस, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ड्यूप्लेट. तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, उसके बाद तीसरा यहाँ पर नहीं जाएगा, फर्स्ट शेल में नहीं जाएगा. तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग एल शेल में ही फिल करना शुरू करें. सेकेंड शेल ऑनवर्ड्स मतलब सेकेंड शेल में और उसके बाहर जो भी शेल्स रहेंगे उसमें क्या कंप्लीट होना चाहिए? ऑक्टेट. मतलब देखो, सेकेंड शेल में हम लोगों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 11th इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में ही जाना चाहिए. वैसे ही 2,8,9 नहीं आएगा. दिविशा यू थॉट करेक्ट, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ये फिनिश होके फिर 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में जाएगा. अभी लॉजिक समझा सबको? Yes. यस. वो स्टार मार्क जो किया है पॉइंट, वो नोट कर लो फटाफट. Noted, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक क्लियर है सभी को बच्चों? Yes. Sir. Yes, sir. अभी नेक्स्ट टॉपिक लिखो. सर आपका कैमरा ऑफ. ओके, करता हूँ, ऑन करता हूँ. देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अभी. इलेक्ट्रो सॉरी राइट डाउन टॉपिक एटॉमिक और आयनिक रेडियस. ये टॉपिक लिखो, एटॉमिक और आयनिक रेडियस. Start to write in that. It is defined as
it is defined as the distance between, it is defined as the distance between nucleus and outermost shell of an atom or ion. It is the distance between nucleus and outermost shell of an atom or ion. Finished? Yes. Yes. अभी देखो, जैसे कि अगर मैं न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल ये ड्रॉ करता हूं, फिर आएगा फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, फिर आएगा फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। क्या हो रहा है देखो, ये मैंने लेफ्ट टू राइट जाते वक्त ड्रॉ किया है, ठीक है। और अब हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 देखो, ऑल ऑफ यू पेज नंबर 23 निकालो जल्दी, लास्ट फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। Sir. और तुम्हें ये एलिमेंट्स देखो कहां पर मिल रहे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और लिथियम की सीरीज में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स भी रहेंगे। ये सारे एलिमेंट्स सबको दिखाई दिए? Yes. यस। अब देखो, हाइड्रोजन में एक ही शेल था, ए शेल, करेक्ट। लिथियम में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,1, मतलब उसमें के शेल भी है और ये एल शेल भी है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,8,1, उसमें के, एल और एम, 3 शेल्स आ रहे हैं। तो देखो, हम लोग जब ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक एक शेल बढ़ रहा है, बराबर। और अपना डेफिनेशन क्या लिखा है हम लोगों ने बच्चों, रेडियस के लिए, सर्कल का रेडियस तो हमें मालूम है ना, अगर ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से लेकर सर्कमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर, रेडियस। तो देखो, न्यूक्लियस सेंटर में है अपना, यहाँ पे न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अपना एटॉमिक या आयनिक रेडियस होगा। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप में एक के नीचे, तो रेडियस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंक्रीज इन शेल, शेल का नंबर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में एक ही शेल है, लिथियम में 2 शेल्स हो गए, सोडियम में 3 शेल हो गए, पोटेशियम में 4 होने ही चाहिए। इफ यू रिमेंबर वेल, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने क्या लिखा था, 2,8,8,1, देखो 4 शेल हो गए, 1 2 3 4, 4 शेल, मतलब सोडियम से भी ज्यादा उसका साइज हो। मतलब क्या होगा हमारे लिए, एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियस जो है increases down the group, correct, increases down the group due to, reason क्या है उसका, due to increase in number of shell, correct। ये रीजन सबको समझा है, डाउन द ग्रुप साइज क्यों बढ़ेगी।
Yes, sir. Yes. Joyson, Darshan, Yes. Akash, Pranit. Yes. Jyotika. Yes, sir. Yes. लेकिन अभी उसी समय पे देखो, सेकेंड पीरियड देखो, लिथियम की सीरीज देखो, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं। जैसे मैंने लिथियम का लिखा है 2,1, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। सेम पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज देखो कम होते जा रहे हैं ना, बराबर। ये साइज कम क्यों होगा? क्योंकि देखो ये जो 2,1, अब ये वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, बराबर। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो सेकेंड शेल ही है सारे एलिमेंट्स, मतलब एल शेल में देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, करेक्ट। नंबर ऑफ शेल वही परमानेंट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे एक एक शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा वैसे उसके न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन भी ऐड होते जाता है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन्स होने चाहिए, बराबर। तो प्रोटॉन क्या करेंगे? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन क्या करेंगे? नेगेटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो खींचने से क्या होगा? लिथियम के कंपैरिजन में, लिथियम में देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स होंगे। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो 4 प्रोटॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स, ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एडिशन सेम शेल में हो रहा है, दैट इज सेकेंड शेल में ही हो रहा है हर बार। इसलिए प्रोटॉन का चार्ज जैसे बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट शेल थोड़ी श्रिंक होते जाएगी, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज डिक्रीज हो जाएगी। रीजन समझ में आया है सबको? हम लोग लिखेंगे along the period radius decreases due to increasing nuclear charge। ये दोनों रीजन सभी को समझ में आए हैं बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो पहले ये कॉपी करो, Yes, sir. चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, बाद में कॉपी करो क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है। एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट। नोटेड? Yes, sir. यस, Yes. ओके। नेक्स्ट लेक्चर में बैठते वक्त, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बैठने शुरू होने से पहले ये सारा जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है, इलेक्ट्रॉन, शेल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका चार्ज, शेल का नाम, शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, व्हाट इज एटॉमिक और आयनिक रेडियस, ये सब रिफर करके ही बैठना है। हम लोग इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir. Yes. चलो, now you can leave. Thank you so much. Have a great time ahead.